تھا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا کہ ہمارا ہمسایہ جو بڑا ناز کرتا ہے اپنی آبادی کے اوپر، اپنے ملک کے سائز کے اوپر، اس کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اس کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، پاکستان ایک بہادر قوم ہے، پاکستان بھارت کی جارحیت سے نہیں ڈرتی، وہ ویژن کی تکمیل کا دن ہے۔ اور میں بحیثیت پاکستانی وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا خواب دیکھا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آج KMC کی جانب سے یہ جو واک منعقد کی گئی، جہاں پر آپ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ سکتے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بحیثیت قوم کتنے شکر گزار ہیں۔ میں اس وقت کی سیاسی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ ان کے اندر یہ دور اندیشی تھی کہ وہ نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کر سکے۔ بالخصوص پاکستان کے پہلے منتخب جمہوری وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شکر گزار ہوں، اس وقت کی ملٹری قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بھٹو صاحب کے اس خواب کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور تمام وہ سائنسدان جنہوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور تواتر کے ساتھ ہماری قیادت، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا ملٹری قیادت ہو، جنہوں نے اس ایٹمی پروگرام کا دفاع کیا۔ بڑی سازشیں ہوئیں کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے، اسلامی دنیا کے پاس یہ ایٹمی قوت نہیں ہونی چاہیے، بڑی سازشیں ہوئیں، لیکن وہ تمام قیادت بیٹھی متحد ہو کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پوائنٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس خواب کو آج کے روز شرمندہ تعبیر کیا گیا۔ میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج اس دن کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ بھارت جس کو بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، وہ مودی جس نے مسلمانوں کے اوپر گجرات میں جو زیادتیاں کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی نعرے لگ رہے تھے قصائی کے حوالے سے، تو بقرعید کا سیزن ہے، ہمارے جو قصائی بھائی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں مودی کے ساتھ کمپیئر نہ کرو، ہم اچھے انسان ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ مودی جو ہے وہ اس کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان لی اس نے ساری انسانیت کی جان لی۔ جس آدمی نے، جس شخص نے مسلمانوں کا چن چن کے ان کو مارا، ان کو شہید کیا، اس کو میں انسانیت کا حصہ نہیں سمجھتا۔ تو اس کو گھمنڈ تھا اپنے اوپر، وہ کہتا تھا ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، وہ کہتا تھا ہمارے پاس یہ پیسہ ہے، ہماری معیشت اتنی مضبوط ہے، ہماری فوج اتنی بڑی ہے۔ پاکستان تو ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نے اپنی میلی آنکھ سے، جس میلی آنکھ سے پہلے اس نے مسلمانوں کو دیکھا گجرات میں، کشمیر میں، اسی میلی آنکھ سے جب اس نے پاکستان کی طرف
देखने का सोचा और थोड़ी सी आंख दिखाई तो जिस तरीके से ये कौम मुत्तहिद हुई और जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने हमारा दिफा किया और भारत को, मोदी को बताया कि तुम अगर एक करोगे तो हम 50-50 करेंगे, और हमने करके दिखाया, जिसके लिए मैं समझता हूं जितना उनको खिराज अकीदत पेश किया जाए, खिराज तहसीन पेश किया जाए, हमारे उन बहादुर लोगों को अपनी जान का नजराना पेश करना, जब दुश्मन जारियत का मुजाहरा कर रहा हो, आपको पता हो कि पता नहीं जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इस डर को खत्म करके, अपनी छाती को सामने करके कि हाँ, पाकिस्तान मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, कोई इस मुल्क के खिलाफ साजिश करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मजा चखा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, हमारी मौजूदा हुकूमत ने, सारी कौम ने एक पेज पर आके मोदी को जवाब दिया, ये इस बात का सबूत है कि हम एक जिंदा कौम है, हम एक बहादुर कौम है, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है कि हमारी मट्टी है, और इस मट्टी के दिफा के लिए, और इस मट्टी के दिफा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा वो हम करेंगे, जिसके लिए आज कराची की आवाम का ये मजमा, जिसने पाकिस्तान का झंडा अपने साथ उठाया हुआ है, वो ये ऐलान करती है, ये कमिटमेंट करती है, ये अहद करती है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस जिंदा कौम की वजह से, इस बहादुर कौम की वजह से, इन बहादुर नौजवानों की वजह से, जवानों की वजह से इंशाअल्लाह ता क़यामत हमेशा कायम दायम रहेगा। आइए पाकिस्तान जिंदाबाद, एक नारा लगाइए। मैं समझता हूँ, मैंने आज डांटा अपनी टीम को कि नारे अफराद के लिए नहीं होने चाहिए, शख्सियात के लिए नहीं होने चाहिए, नारे पाकिस्तान का दिन है, नारा एक ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस उम्मीद के साथ कि ये मुल्क हमारा प्यारा पाकिस्तान हंसता मुस्कुराता हुआ रहे, इसकी कौम इसी तरीके से मुत्तहिद रहे, और हम अपने मुल्क का दिफा इसी तरीके से करते रहे। आने वाला वक्त हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। जो प्यार करेगा उसको प्यार देंगे, जो साजिशें करेगा उसको उखाड़ देंगे इंशाअल्लाह। बहुत पाक भारत का जो अभी हालिया एक जंग की सी कैफियत थी, उसके बाद जबरदस्त जवाब दिया पाक फोर्सेस ने, उसके बावजूद भी मोदी के बयानात आ रहे बड़े गैर जिम्मेदाराना, तो किस तरह देखते हैं, कोई सियासी गेन के लिए कर रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा? देखिए, मेरा अपना मानना ये है, जब एक गलत चीज़ होती है और कोई उसको रोकता नहीं है ना, तो जो गलत करने वाला है ना, उसको तक़वियत मिलती है। दुनिया में इसराइल की जारियत फ़लस्तीन पर चल रही है, दुनिया खामोश रही। हाँ, लोगों ने, कुछ अक़वाम हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी अवाम का साथ दिया, लीडरान ने साथ दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं हुआ। और मेरा बहैसियत इंसान दिल खून के आंसू रोता है जब मैं फ़लस्तीनी बच्चे बच्चियों का हाल देखता हूँ, उनके बुज़ुर्गों का हाल देखता हूँ। आपने जब वहाँ पर इसराइली जारियत को, इसराइली घमंड को नहीं रोका, जब गुजरात के अंदर मोदी मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहा था, तो अमेरिका ने उस ज़माने में उसके ऊपर, अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन भारतीय कौम ने जब मोदी का रास्ता नहीं रोका और वो वज़ीर आज़म बन गया, तो उसको और तक़वियत मिली। उसने कहा चलो यार, कश्मीर के साथ भी यही करते हैं, और उसने कश्मीर के साथ ये किया। दुनिया खामोश रही। जब वो ये एकतरफ़ा फ़ैसला कर रहा था और दुनिया उस वक्त कहती, अक़वाम मुत्तहिदा कहती कि हमारी जो 1948 की करारदाद है प्लेबिसाइड की, उस करारदाद को इम्प्लीमेंट करना मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं करेगी तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रही, वो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें खामोश रही, तो फिर मोदी को तक़वियत मिली है कि हाँ, जब मैं गुजरात में कर सकता हूँ, कश्मीर में कर सकता हूँ, तो मैं पाकिस्तान में भी करूँगा। लेकिन उसको लग पता क्या कि कश्मीर
गुजरात और पाकिस्तान में डिफरेंस है। यहाँ पर ये कौम मुत्तहिद है, हमारी अफवाज बहादुर है, निडर है, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे पर यकजुबां हैं। और आपने देखा जिस तरीके का जवाब दिया, उनको अंदाज़ा हो गया। बाकी जिस उम्र के हिस्से में गालिबन वो शायद सठिया गए, पीछे तो मुझे आवाज़ आई, सठिया गए, काफ़ी अकेले रहे ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ उनको किसी के साथ की ज़रूरत है, वो शादी वादी कर लें, कब तक अकेले रहेंगे। आप सोचें कि किसी ने ज़िंदगी साथ गुजारने का फ़ैसला नहीं किया और यहाँ पे भारतीय कौम के ऊपर उस आदमी को मुसल्लत कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ जिसका अपना घर बार नहीं है, हमारा घर बार है ये, इसलिए हम इस मुल्क को, इस मट्टी को अपना घर समझते हैं। हमें ये एहसास है, दिल में मोहब्बत है, उस आदमी को नहीं है। तो इस तरह का जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल माइंडसेट का ईगोइस्टिक आदमी होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारी अफवाज ने जवाब दिया है ना, उसका मज़ा आ गया है। वो हर कोई अब औरा कर रहा है ना, तो पाकिस्तान को औरा माशाल्लाह हो गया। और अल्लाह ताला हमारी कौम को इसी तरीके से मुत्तहिद रखे और बुरी नज़रों से और हासिदों के शर से हमारी कौम को, हमारे मुल्क को बचाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।